Rahman Rahim. Welcome to Dr. Sadiq platform. Today, I would like to give you the very important and hard favorite topics for NRE Step 1. तो डॉक्टर सादिक की तरफ से आप लोगों के लिए NRE Step 1 जो लोग अभी रिसेंटली अप्लाई कर चुके हैं एंड रिसेंटली दे आर गोइंग टू अपेयर इन एग्जाम, उन लोगों के लिए जो NRE Step 1 है उसके लिए मेरे 100 टॉपिक्स है। अगर वो टॉपिक्स सही तरीके से वो करके जाएंगे तो inshallah they will pass exam 90% they will pass in the exam. So actually be with Dr. Sadiq throughout the session, and these 100 topics will change your exam quality, and that will help to pass exam in 90% of the cases. So just without wasting time, let's start, guys. So what are those topics that you should go through before exam? The first topic that I would like to tell you, that is called humerus fracture. Humerus fracture. Now I will go for the topic a bit faster, that without wasting time we go faster. Humerus fracture with nerve palsies. तो ये आप लोगों ने एक जरूर करके जाना है कि अगर आप लोगों को एग्जाम में पास होना है तो ह्यूमरस फ्रैक्चर विद नर्व पॉलिसिस, नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर एक्सिलरी नर्व, shaft of the humerus fracture radial nerve, like supracondylar fracture median nerve. So these are the hot favorite topic for the exam. अपर लिम्ब के अंदर रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व इंजरी लीड्स टू दैट इज रिस्ट ड्रॉप, दैट इज अल्नर नर्व इंजरी, अल्नर नर्व इंजरी कैन लीड्स टू क्ला हैंड, मीडियन नर्व पाल्सी कैन लीड्स टू एप हैंड, मीडियन नर्व पाल्सी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजरी leads to weakness in the flexion of elbow. So these nerve palsies are very important for the exam. Now the third number is CTS, that is carpal tunnel syndrome. And you people should know that in carpal tunnel syndrome there is median nerve palsy. And please remember, the median nerve palsy leads to thenar muscle atrophy, that is opponent's weakness, and there is app hand. So these are the classical feature if there is median nerve palsy, especially in the carpal tunnel syndrome. So they are very important and they should be go through, especially in the upper limb. After that we are going to discuss the next topics. अब next topic के अंदर फोर्थ नंबर टॉपिक की तरफ जाएंगे। अगर हम लोअर लिम्ब की तरफ जाए, यू पीपल शुड नो शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व के बारे में याद रखें, शियाटिक नर्व डिस्ट्रीब्यूशन याद रखें। नेक्स्ट इज कॉल्ड फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप के बारे में डिस्कशन याद रखना है। फुट ड्रॉप के बारे में याद रखें, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि विच नर्व डैमेज इन फुट ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड कॉमन पेरोनियल नर्व, विच इज आल्सो नोन एज कॉमन फिबुलर नर्व. So common peroneal nerve and common fibular nerve palsy can leads to foot drop. Actually जो common peroneal nerve है ये दो में डिवाइड होती है, superficial peroneal and deep peroneal at the neck of fibula. So if the neck of fibula fracture come in exam, that is common peroneal nerve or common fibular nerve palsy leads to foot drop, and there will be loss of dorsiflexion. Number 6, very important, root value. Root values of some nerve, very important. You people should know the root value of pudendal nerve. Before going to exam, these thing has to be remembered. Pudendal nerve. Number 2, root value of femoral nerve, like L2, L3, L4. ये आप लोगों ने करके जाना है. Root value of sciatic nerve, very important. Sciatic nerve. And in the thoracic cavity, root value of the phrenic nerve. Phrenic nerve is supplying the diaphragm, and this roots value always ask in exam, that is C3, C4 and C5. So root values of these four nerve is very important in the exam, and they will definitely ask you in the exam. Next देखिए, hip joint instability. Hip joint instability, that is because of inferior gluteal nerve palsy. So hip joint instability are very important. In the lower limb, that is DVT, deep vein thrombosis. और यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली वेन इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड popliteal vein. So popliteal vein is a very common vein. They are affected in deep vein thrombosis. 9 number, thoracic cavity में जाते हैं. In thoracic cavity, you people should know the contents of mediastinum, very important, like superior mediastinum, inferior mediastinum. Here in inferior mediastinum there is 3: anterior, middle and posterior mediastinum. The most important MCQs, that arch of aorta, that is a part of superior mediastinum,
but ascending aorta, that is anterior mediastinum, and the heart hole is present in the middle mediastinum. The next question you people should know from here, that is called diaphragm opening. That is called diaphragm opening. तो diaphragm opening से एनआरई वन के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि डायफ्राम के अंदर जो T8 है इंफीरियर वीना के हुआ, T10 एसोफेगस एंड वेगस नर्व, T12 एजाइगस वेन, दैट इज thoracic duct and abdominal aorta. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखें, मतलब चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, इसकी जो रिलेशन है, चेम्बर्स ऑफ हार्ट रिलेशन, वो कैसे याद रखना है. द एंटीरियर मोस्ट, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए एंटीरियर मोस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट दैट इज राइट वेंट्रिकल, बट पोस्टीरियर मोस्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम. तो अगर एक बंदा है, उसकी स्टेप इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, सामने से वो लगा है, सो द मोस्ट लाइकली एरिया टू बी डैमेज इज राइट वेंट्रिकल. बट एनीवन हु मतलब हैज माइट्रल वॉल स्टेनोसिस, क्योंकि आप लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर, 4. नाउ यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे माइट्रल वाल है. अगर माइट्रल वाल स्टीनोस हो जाए, ये नेरो हो जाए, क्योंकि यंग एज के अंदर द मोस्ट कॉमन वाल टू बी अफेक्टेड इन हार्ट दैट इज माइट्रल वाल. अगर ये डैमेज हो जाए तो लेफ्ट एट्रियम विल नॉट गिव ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, so left atrium will enlarge, and when left atrium is enlarged it will compress esophagus on back side, it can cause dysphagia, it will compress trachea on back side, can cause dyspnea, or it may compress recurrent laryngeal nerve and it can cause hoarseness of voice. So please remember, left atrium is the posterior most chamber of the heart. Very very favorite topic in the exam. Now the next topic, which is very very important, that is called in the abdomen, very important, that is called blood supply of esophagus. Very very important. The blood supply of esophagus, especially in the arterial section as well as venous drainage, इसमें पोर्टोसिस्टेमिक शंट, जो पोर्टोसिस्टेमिक शंट है वो आप लोगों ने याद रखना है. इसके अंदर एसोफेजियल वेरिसेस होता है. नंबर 13 सॉरी, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, द एरिया ऑफ द होल जीआईटी where there is decreased blood supply is known as splenic flexure, which is called the watershed area. तो splenic flexure is the most common site prone for ischemic colitis. पर यहाँ पे लिखे नेक्स्ट इज सीलियक ट्रंक. सीलियक ट्रंक याद रखे, सीलियक ट्रंक के साथ साथ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड inferior mesenteric artery. Celiac trunk arises from abdominal aorta at the level of T12. This superior mesenteric artery arises from abdominal aorta at the level of L1 and that is at the level of L3. It supplies blood to the foregut. This is midgut and that is the hindgut. So these are the hard favorite topic for the exam. Now 15 number topic, very important, that is called contents of perineal pouches, like superficial perineal pouch and deep perineal pouch. एक चीज याद रखे, very important, that is called MUD, that is called mud, and one is called APUS, pus. So when there is M for membranous urethra damage, the urine will accumulate in deep pouch. If there is penile urethra rupture, that will accumulate in superficial perineal pouch. So M for membranous urethra, that is deep pouch urination, penile urethra damage, superficial pouch accumulation. So these are very very important. Please remember it. It will help you in the exam as well. Now next question is very very important. That is cranial nerves. So cranial nerves all are important, but the most important cranial nerves, remember, oculomotor. Oculomotor nerve palsy leads to ptosis, mydriasis, and there will be weakness in the eye. The next one is called, that is known as trochlear nerve and abducens nerve. Abducens nerve supply one muscle in the eye, that is lateral rectus. Next is facial nerve. Facial nerve palsy lead to Bell's palsy, and there is asymmetry of the mouth. Name cranial nerve number 9, cranial nerve number 10, and cranial nerve number 11. 11 is very very important. That is accessory nerve. Accessory nerve damage lead to weakness in the two muscle. So please remember, it supply trapezius muscle. Accessory nerve damage lead to trapezius muscle weakness. For number 2, it can cause the most important one, that is sternocleidomastoid muscle. तो आप लोगों ने cranial nerves के अंदर ये याद रखनी है. अब इसके बाद आते हैं जनाब 16 नंबर. आफ्टर 16 देयर इज 17.
17 के अंदर सबसे इंपोर्टेंट स्ट्रोक याद रखना है। स्ट्रोक के अंदर आप लोगों ने MCA ब्लॉक, ACA ब्लॉक एंड PCA ब्लॉक ये याद रखना है। सो MCA इज अ मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल, और इसी के साथ साथ सर्कल ऑफ वेलस, क्योंकि सर्कल ऑफ वेलस आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज एंटीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ICA, दिस इज एंटीरियर सेरेब्रल, दिस इज एंटीरियर, और दिस कॉल्ड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और यहाँ से पोस्टीरियर सेरेब्रल बेसिलर आर्टरी एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, दैट इज सर्कल ऑफ वेलस। नाउ दिस इज द पॉइंट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसके दरमियान ये जो जगह है दैट इज मोस्ट कॉमनली फ्लोन फॉर berry aneurysm which can cause subarachnoid hemorrhage. If subarachnoid hemorrhage come in exam and they ask the drug, that is called nimodipine. So nimodipine should be your answer if they ask in the exam. Next question 18 नंबर की तरफ जाते हैं। अब आते हैं सिस्टम की तरफ। तो हम स्टार्ट करेंगे हेमाटोलॉजी से। हेमाटोलॉजी के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया, very important, G6PD deficiency. Number 3, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, aplastic anemia, and sickle cell anemia. So they are very, very important. And hereditary spherocytosis also, like spectrin, incarnate, band 3 protein problem. Thereafter that, the next one is called, like what is PT, it's screen extrinsic pathway, APTT, it's screen intrinsic pathway. Number next very important that is called coagulation cascade के clot factors क्या है, और very important von Willebrand factor deficiency. So von Willebrand factor deficiency is one of the favorite topic for the examiner. इसके बाद यहाँ पे छोटे टॉपिक से ITP like TTP and HUS hemolytic uremic syndrome. These three topics should be on the fingertips. One MCQs from these topics should be there in the exam. इसके बाद 21 नंबर पे जाएंगे। तो 21 नंबर के अंदर रिमेंबर लाइक ल्यूकीमियास, ल्यूकीमियास के अंदर आप लोग सारा का सारा ना पढ़े, यू पीपल शुड नो ALL एंड CML। CML के अंदर याद रखे 922 ट्रांसलोकेशन एंड देयर इज पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम, पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और जो CML है याद रखे इसमें द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CML दैट इज कॉल्ड imatinib, and imatinib is a drug which is used in the treatment of CML and that inhibit tyrosine kinase enzyme. So ALL and CML very very important. Next 22 number Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma के types याद रखना है। Hodgkin lymphoma में nodular sclerosis is the most common. The Hodgkin lymphoma lymphocyte predominant has a good prognosis. Lymphocyte depleted has a poor prognosis. And one is mixed regularity. You should know the types of Hodgkin lymphoma. फिर इसके बाद नॉन Hodgkin lymphoma के अंदर the very favorite for examiner that is called Burkitt lymphoma. So Burkitt lymphoma के अंदर there is a translocation 8N14 और इसमें जो gene involved होता है that is called c-MEG gene. So c-MEG gene and translocation 8N14 very very important one, they ask in the exam as well. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे दैट इज कॉल्ड 29 नंबर टॉपिक के अंदर अब आते हैं जनाब, ये तो हेमाटोलॉजी से मोर देन इनफ है। इसके बाद आते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन के अंदर वेरी इंपोर्टेंट प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा एंड एक्रोमेगेली, दीज आर द टू थिंग व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी। एक्रोमेगेली का क्वेश्चन इस तरह आता है कि पेशेंट हु हैज फ्रंटल बोसिंग, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है तो इट विल इंक्रीज द बोन वेट वाइज। इसमें जो प्रीवियसली बंदा रिंग पहनता है ना, फिंगर के अंदर जो रिंग पहनता था, अब वो रिंग उसको सही तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि बोन की वेट वाइज इंक्रीज की वजह से उसकी जो वेटनेस है वो ज्यादा होगी। तो एक्रोमेगेली आप लोग याद रखने, उसमें ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद देखें 30 नंबर इंपोर्टेंट लाइक ग्रेव्स डिजीज, ये पढ़ के जाने ग्रेव्स डिजीज एंड हशीमोटो थायरोडाइटिस, हशीमोटो थायरोडाइटिस। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड डी क्वेरियन थायरोडाइटिस। इसका मतलब ये है इफ एनी पेशेंट हु हैज प्रीवियसली वायरल इलनेस, इसका क्लू एग्जाम के अंदर ये होता है कि एक बंदा है उसको पहले से वायरल इलनेस हुआ है और इसके बाद द पेशेंट प्रेजेंटेड विद टेंडर थायराइड, ये दो बात याद रखें। Viral illness 2 to 3 weeks before, after that patient develop
टेंडर थायराइड, थिंक अबाउट डिक्वेरियल थायरोइडाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस प्लस मैनेजमेंट। उसकी जो ट्रीटमेंट है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है या इंसुलिन वगैरह है, वो भी आप लोगों ने जरूर करके जाना है। एंड दे विल आल्सो आस्क इन द एग्जाम अलॉट, एंड दे फ्रीक्वेंटली आस्क दैट। अनदर इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, एंसुलिनोमा। एंसुलिनोमा के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लू दैट इज रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ सी पेप्टाइड। तो ये आप लोगों ने यहाँ से जरूर करके आप लोगों ने एग्जाम में परफॉर्म करना। नेक्स्ट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर इसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा होता है, एंड द पेशेंट विल हैव विनाइल मेंडेलिक एसिड इन यूरिन। यूरिन के अंदर वीएमए ज्यादा होगी। इसका ड्रग ऑफ द चॉइस आता है दैट इज फिनॉक्सीबेंजामीन। सो फिनॉक्सीबेंजामीन शुड बी गिवन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यू शुड गो फॉर कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट वेरिएबल? नंबर टू, यू पीपल शुड नो बीपी रेगुलेशन, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल एंड प्लस पेसमेकर, ऐसे नोड एंड ऑफ ए बी नोड। इसमें एक क्वेश्चन याद रखें, द एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऐसे नोड एंड ए बी नोड। जो पेसमेकर है उसकी जो हमारे पास डीपोलराइजेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और इसके अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर इज सोडियम इन्फ्लक्स। सो एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल लाइक एट्रिया एंड वेंट्रिकल सेल, उसकी जो डीपोलराइजेशन है वो सोडियम कराता है और जो पेस मेकर है वो कैल्शियम कराता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यू शुड नो द ईसीजी कंटेंट कि पी वेव एट्रियल सिस्टोल है, क्यू आर एस वेंट्रिकल सिस्टोल एंड टी वेव वेंट्रिकल डायस्टोल है, जिसको हम वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी कहते हैं। हार्ट ब्लॉक्स याद रखें, हार्ट ब्लॉक्स। फिर सार्ट अपेयरेंस लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ये दोनों आप लोगों ने इरेगुलर रिदम, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एफिब है, और जो सार्ट अपेयरेंस है वो एट्रियल फ्लटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों ने यहाँ से करना है दैट इज कॉल्ड रूमेटिक फीवर प्लस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें ये वाला इंपोर्टेंट है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कॉज है लाइक आफ्टर कोलोन कैंसर स्टेप्टोकोकस बोविस है या गेलोलाइटिकस है, या फिर स्किन के बाद स्टेप आरियस है, नेटिव वाल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वाल्व डैमेज वाल्व आफ्टर डेंटल प्रोसीजर। ये सारे के सारे आईवी ड्रग यूजर, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके जाने। इसमें जोन्स क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ना है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वर्सेस राइट साइड हार्ट फेलियर, ये आप लोगों ने करके जाने। इसमें पल्मोनरी एडीमा, इसमें नासार का होता है, ठीक है जी। आफ्टर दैट यू पीपल शुड गो फॉर लिपिड लोअरिंग ड्रग। लिपिड लोअरिंग ड्रग में स्टेटिन करके जाना है। नंबर टू, यहाँ पे एसीई इनहिबिटर करके जाना है, एंटी हाइपरटेंसिव, ईआरबी एंड ऑफ बीटा ब्लॉकर। दे आर द फेवरेट फॉर एग्जाम। एग्जाम के अंदर ये सारी की सारी एग्जाम में पूछता रहता है। इसके बाद सीवीएस, अब ये डन हो गया, तो सीवीएस के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो जीआईटी है। जीआईटी में आप लोग एकलेजिया करके जाए। एकलेजिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिक अल्सर लाइक इसमें एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के बारे में इसकी माइक्रो थोड़ी सी पढ़े, ग्राम नेगेटिव है, यूरियस पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रिपल ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम पाइलोरी क्योर, पाइलोरी क्योर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक विल क्योर पाइलोरी। सो पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन, ये हम देते हैं। इसके बाद जनाब आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दैट इज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड डायवर्टिकुलोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने जीआईटी से जरूर करके जानी। फिर इसके बाद जो 41 है दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, क्योंकि पेंक्रियास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। प्लस इसके साथ साथ द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। तो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा के अंदर देर इज CA 19-9 से ट्यूमर मार्कर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूमर मार्कर आप लोग को मैं थोड़ी सी बताता हूँ, आप लोग नोट करें। CA 15-3 वो ब्रेस्ट कैंसर है,
CA 19 पेंक्रियाटिक कैंसर है। CEA वो कोलोरेक्टल कैंसर है जो रियोकरेंस के लिए चेक किया जाता है। AFP हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा या मतलब टेस्टिकुलर ट्यूमर है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसमें आप लोगों को याद रखना है कैल्सिटोनिन जो मेडुलरी कार्सिनोमा है, ठीक है। मैं वहां पे थोड़ा सा भूल चुका था, आप लोगों ने मेन भी याद रखना है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। वन क्या है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। 2A मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। 2B ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पिट्यूटरी, पैराथायराइड और पेंक्रियाटिक कैंसर है। इस तरह ये 3B है, ये आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि जो मेन 2B है इसमें मार्फनाइट हैबिट होता है। वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। अगर मेन 2A मेन 2B में मेडुलरी कार्सिनोमा आ जाए तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? दैट इज प्रोफाइलेक्टिक थायराइडेक्टोमी, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सीरोसिस। सीरोसिस ऑफ लिवर, वेल्सन डिजीज एंड हीमोक्रोमेटोसिस। सो दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये आप लोगों ने जरूर यहाँ से करके जाना है। इसके बाद 44 नंबर पे जाते हैं रीनल सिस्टम में। रीनल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है वर्सेस नेफ्राइटिक, ये जरूर करके जाना है। नंबर 45 रीनल स्टोन लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट। और इसके साथ साथ ये जरूर करके जाए हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किडनी से आप लोग इतना भी करें मोर देन एनफ है। और ये चीज जरूर करके जा रहे, PCT इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 80% ऑफ फिल्ट्रेट्स। तो PCT के अंदर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, ये थोड़ा सा जरूर करके जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि मतलब लूप डायग्रेटिक्स कहाँ पे काम करते हैं, थायजाइड कहाँ पे काम करते हैं। लूप डायग्रेटिक्स एक्ट ऑन सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर थायजाइड जो है वो सोडियम क्लोराइड DCT पे, ADH कलेक्टिंग डक्ट्स पे। तो इनमें भी से एक MCQ जरूर आता है कि कौन सा डायग्रेटिक कहाँ पे काम करता है। इसके बाद 48 नंबर की तरफ जाते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने इसके बाद रिस्पायरेटरी में आस्थमा विद ट्रीटमेंट पढ़ना है कि आस्थमा क्या है। ट्रीटमेंट बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फिर इसके बाद COPD क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वर्सेस एम्फाइसीमा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक करके जाने वो ब्रोंकिएक्टेसिस है। ब्रोंकिएक्टेसिस ये कार्टागिनर सिंड्रोम के साथ होता है। और इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर। लंग कैंसर में पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम लाइक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, उसमें एक्टापिक ADH, एक्टापिक ACTH होता है। और जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसमें PTHrP, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। और इसमें न्यूमोकोनियोसिस, तो न्यूमोकोनियोस आप लोगों ने करके जाना है। और लास्ट मंथ इसमें TB बेस्ड ट्रीटमेंट। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, इंशाल्लाह इससे आप लोग की बहुत सारी जो कवरिंग है वो हो जाएगी। तो ये 50 टॉपिक आप लोग जहन में रखें। अभी जो आप लोग के पास रिमेनिंग दिन है ना, मतलब देखे कोशिश करें कि ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है वो कल के दिन को ये टॉपिक पढ़े और साथ जो भी आप लोग के पास प्रैक्टिस के लिए MCQs हैं वो भी करें। तो ये टॉपिक करें और फिर MCQs करें। फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 पॉइंट्स में ऐड करूंगा। फिर वो नेक्स्ट डे 50 और MCQ करें। तो आज मंगल है, तो देखिए बुध के दिन ये 50 प्लस MCQs, फिर थर्सडे के दिन 50 MCQs। फिर ये 100 टॉपिक आप लोग अगर चाहे तो जुम्मे के दिन पूरे के पूरे एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करें। और फिर जितना हो सके जुम्मे का रिमेनिंग डे और जो सैटरडे है उसमें MCQs करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके सारे के सारे पास होंगे। और मेरी तरफ से ऑलवेज बेस्ट विशेस, BFMGs आर द फैमिली। बेस्ट विशेस फ्रॉम डॉक्टर सादिक। मोस्ट वेलकम टू द मेडिकल क्लब। जितना हमसे हो सके वी विल गिव यू इंशाल्लाह ऑल द टाइम। और बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू गाइस। सो स्टे ट्यून ऑन द यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आखिर में अपने कमेंट जरूर दे दें that we can modify the way we teach इंशाल्लाह। अब ये तो टाइम नहीं है, अगर आप लोग मुझसे पढ़े हो, जो लोग मुझे सुन रहे या इन लोगों ने जिन्हें नहीं पढ़ा इन दे वांट इन द फ्यूचर टू स्टडी विद मी, मैं फर्स्ट एड भी पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो मोस्ट वेलकम। हम उर्दू में भी पढ़ा रहे हैं, पश्तो में भी पढ़ा रहे हैं। तो वी गाइस आर द सेम फैमिली एंड आई विल ऑलवेज फॉर यू गाइस। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून, be like and comment, subscribe the channel and stay tuned till tomorrow for the next 50 points. Jazakallah, thank you so much.